Yes, today we'll start with the IUPAC nomenclature of coordination compound. Means how to write down the name of coordination compound, correct? So IUPAC nomenclature of coordination compound. Rules for naming coordination compound. Rules for naming coordination compound recommended by IUPAC are as follows. First one, what is the first rule? Name of the anionic ligand. Now we all know what is anionic ligand, the ligand which carries the negative charge. The name of the anionic ligand are obtained by changing ending IDE to O. जिनके एंड में IDE रहेगा उसे किस में चेंज करोगे? O में. और जिनके एंड में रहेगा ATE उसे चेंज करोगे ATO में. ATE will change to ATO. For example, Br minus is bromide. IDE will change to bro, my, bromo. IDE will change to O, bromo. For example, Cl minus is chloride. IDE will change to chloro, CHL, chloro, R, and ID change to what? O. F minus, fluoride. IDE will change to what? FLUO, R. IDE change to what? Fluor. Correct? Cyanide, CN minus. CN minus are called as cyanide. IDE will change to what? O. So what we get here? Cyano, SCYAN, and ID will change to what? O, cyano. Correct? These are which ligand? These are anionic ligands. The ligands which carries the negative charge. The ligand which carries the negative charge are called as the anionic ligand, and in that IDE will change to what? O. So bromide will change to bromo. Chloride will change to chloro. Fluoride will change to fluoro, and cyanide will change to cyano. Correct? Some more example now I will take for this one. Suppose we got here CO32 minus. CO32 minus is called as a carbonate, ending with what? ATE. ATE will change to carbo. ATE will change to what? ATO. Carbo. ATO. Carbonato. Correct? ATE will change to what? ATO. Suppose for example we say here C2O4 2 minus. C2O4 2 minus is oxalate. And oxalate will change to ATE will change to what? ATO. So oxalato, OXAL, ATO, oxalato. Correct? These are the changes. Like suppose in some who ends with ATE, will write it what? ATO. Oxalate will change to what? Oxalato.
then the two are additional. They can just say these are the one type, this is second type, and then this is here NO2 minus nitrite are written as nitro, because but we know that NO2 minus is a bidentate ligand. Bidentate का मतलब N can attachment can be done either to nitrogen or it can done to oxygen. Nitro का भी use करना है for N bonded ligand, for N bonded ligand nitro. S C, I'm just taking some example, all I'll just show you in the book. SCN minus, SCN minus is called as a thiocyanate. Thiocyanate. Now here it is ending with what? ATE. And because it's changing, यहाँ पे कुछ rule नहीं है. यहाँ पे ATE will change to what? Thiocyanate, because we know this is also amperated ligand. Attachment can be done either to sulfur or attach can be done to the nitrogen. तो यहाँ पे ion attachment कहाँ से होगा? For ligand donor atom sulfur. ligand donor मतलब अगर सल्फर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या बोलना है? Thiocyanate. But ATE will change to what? ATO, thiocyanate for ligand donor, for ligand donor, DONOR, donor. Ligand donor atom is sulfur. Okay, I've just taken some example here. Now I'll just show you the example which is there in the book. See here. See, bromide can be bromo. Chloride can be chloro. Fluoride can be fluoro. Iodide can be iodo. Cyanide can be cyanide. Sulfate, ATE will change to what? Sulfato. AT will change to ATO. Nitro will change to nitrato. यहाँ पे कुछ रूल नहीं, इधर कुछ रूल नहीं है. Nitro will change to nitrato. Then other anionic ligand, carbonate will change to carbonato. Hydroxide, IDE will change to hydroxo. Oxalate will change to oxalato. Nitrite will change to nitro. Attachment through what? N. और अगर अटैचमेंट O से होगा, देखो N से अटैचमेंट होगा तो नाइट्रो, और O से अगर अटैचमेंट होगा तो नाइट्रीटो. नाइट्रीटो O bonded ligand. SCN minus, thiocyanate will become thiocyaneto. ATE, ATE will change to what? ATO. For ligand donor atom is sulfur. और NCS अगर thiocyanate ही है, लेकिन अगर ligand donor atom नाइट्रोजन रहेगा तो उसे क्या बोलना? Isothiocyaneto. तो ये thiocyanate will become thiocyaneto, और ये आइसो अगर ligand donor atom नाइट्रोजन रहेगा तो isothiocyaneto. करेक्ट. ओके, उसके बाद न्यूट्रल लिगैंड कौन कौन से? देखो, अमोनिया. अमोनिया को नाम क्या लिखना है? अमाइन. स्पेलिंग देखो अमाइन का, AMMIN, अमाइन. CO कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए क्या लिखना है? कार्बोनाइल. कार्बोनाइल. वाटर. वाटर के लिए क्या लिखना है? एक्वा. AQUA, एक्वा. एंड इथिलीन डायमाइन के लिए क्या लिखना है? इथिलीन डायमाइन. मीन इंस्टेड ऑफ गिविंग अ स्पेस, EN मतलब इथिलीन डायमाइन. इथिलीन डायमाइन कैन बी रिटन एज व्हाट? इथिलीन डायमाइन इज द वन वर्ड. करेक्ट. खाली यहाँ पे अमोनिया में ध्यान में रखना, अमोनिया और अमाइन, नॉर्मली अमाइन का स्पेलिंग हम लोग क्या लिखते हैं? AMINE, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग क्या दिया हुआ है? AMMIN. जब मैं प्रॉपर एग्जांपल करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा. करेक्ट. So what is the first rule we have said? The name of the anionic ligand are obtained by changing the ending IDE to O or ATE to ATO.
Correct? Some, not all, but some of the changes we can do. Now, second point. This is the first point. I'll go for the second point. Second point, in naming the complex ion, in naming the complex ion or the in naming the complex ion or the neutral molecule, name of the ligand should be written first. In naming the complex ion, अगर हमारे पास complex ion रहेगा या अगर हमारे पास neutral molecule रहेगा, the name of the ligand is written first and then the name of the metal. सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? Name of the ligand. और नेम ऑफ द लिगैंड लिखने के बाद क्या लिखना पड़ेगा? नेम ऑफ द मेटल. और मेटल का नाम लिखने के बाद क्या लिखना पड़ेगा? आफ्टर द नेम ऑफ द मेटल राइट इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन द रोमन नंबर इन द ब्रैकेट. मतलब सबसे पहले लिगैंड का नाम कौन से लिख रहे? कॉम्प्लेक्स आयन अगर हमारे पास रहेगा तो, या अगर हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल रहेगा तो पहले क्या लिखना है? नेम ऑफ द लिगैंड. नेम ऑफ द लिगैंड के बाद क्या लिखना है? नेम ऑफ द मेटल. नेम ऑफ द मेटल लिखने के बाद मेटल का क्या लिखना है? ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना इन द रोमन नंबर इन द ब्रैकेट. करेक्ट. देन उसके बाद if complex has more than one ligand, complex has more than one ligand of the same type, मतलब एक ही लिगैंड अगर बार बार आ रहा है, एक ही लिगैंड अगर दो टाइम आ रहा है, एक ही लिगैंड अगर दो बार आ रहा है तो डाई, एक ही लिगैंड अगर थ्री टाइम्स रहेगा तो ट्राई, एक ही लिगैंड अगर फोर टाइम्स रहेगा तो टेट्रा. लाइक दैट वी कैन यूज. मतलब सेम लिगैंड अगर टू टाइम्स रहेगा तो डाई, सेम लिगैंड थ्री टाइम्स रहेगा तो ट्राई, एंड सेम लिगैंड अगर फोर टाइम्स रहेगा तो टेट्रा. लेकिन अगर इफ द कॉम्प्लेक्स हैज मोर देन वन टाइप ऑफ द लिगैंड, लेकिन दो अलग अलग लिगैंड अगर रहेंगे, then they are written in an alphabetical order. मतलब सेम लिगैंड रहेगा, then we can use the prefix like what? Di, tri, tetra. Di, tri, tetra. लेकिन अगर अलग अलग लिगैंड रहेंगे, then their name to be written in the alphabetical order. The name to be written in the alphabetical order. Correct. Now we'll take the example, and with all example the doubts will get clear. We have the first type of the ligand. First we'll have here anionic first we are having anionic complexes. Anionic means what? The complex carries a negative charge. In that, the first example, NiCN 4 2 minus. The first one is NiCN4 2 minus. सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें NiCN4 2 minus में Ni का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो. ऑक्सीडेशन नंबर कैसे? मैं अभी जो ऐसा एज्यूम करूंगा कि इस नेम सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर Ni का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है. तो मैंने यहाँ पे लिखा है X. अभी हमें मालूम है साइनाइड. साइनाइड का चार्ज क्या होता है? Cn माइनस माइनस. साइनाइड के ऊपर चार्ज होता है Cn-1. तो यहाँ पे 4 साइनाइड. साइनाइड का चार्ज कितना आ रहा है? -1 आ रहा है. तो -1 इक्वल टू चार्ज कितना आ रहा है? -2. तो X 4 into 1 4 and plus into -4 equal to -2. So X is equal to -2 plus 4.
सो x इज इक्वल टू +2। मतलब यहाँ पे हमारा जो निकेल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ रहा है, Na का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ रहा है, करेक्ट। अभी हमें क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है लिगैंड। लिगैंड के बाद क्या लिखना है, मेटल, और मेटल के बाद में उसका क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कौन सा लिगैंड है हमारे पास, साइनाइड है। और साइनाइड देखो उसका नाम है साइनाइड, IDE। IDE के लिए क्या करोगे, साइनो, क्या लिखना है, साइनो। कितने साइनो ग्रुप है, 4। तो विल जस्ट राइट डाउन हियर एज व्हाट, टेट्रा साइनो, टेट्रा साइनो, 4 4 4। तो इसीलिए क्या लिखा यहाँ पे, टेट्रा। साइनाइड रहेगा तो साइनाइड में IDE विल रिप्लेस बाय व्हाट, ओ, तो साइनो, टेट्रा साइनो। लिगैंड हो गया, उसके बाद क्या लिखना है, मेटल। कौन सा मेटल है, निकेल। कौन सा मेटल है, निकेल। तो यहाँ पे क्या लिखो, निकेल। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग, ये हमारा जो लिगैंड है, ये कौन सा लिगैंड है, एनायोनिक लिगैंड है, एनायोनिक लिगैंड। तो एनायोनिक लिगैंड में निकेल के लिए, एनायोनिक लिगैंड के निकेल के लिए क्या लिखना है, निकेल, निकेल, और आगे क्या लगाना है, ATE, निकेलेट। क्या लगा, निकेल, निकेल, NiCKEL, NiCKEL के आगे क्या लिखना है, निकेलेट। यहाँ पे टेट्रासाइनो, टेट्रासाइनो निकेलेट, NiCKEL, निकेल। आगे क्या लगाना है, ATE, आगे क्या लगाना है, ATE। और निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो ब्रैकेट में रोमन नंबर 2। और यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, इसलिए क्या लिखोगे आप, आई। ये हमारा नाम आ गया, एनोनिक लिगेंड। क्या लिखा देखो हम लोगों ने, 4 साइनाइड है, इसीलिए क्या लिखा, टेट्रा। साइनाइड के लिए क्या लिखना है, साइनो, तो टेट्रा साइनो। एनोनिक लिगेंड में जब मेटल लिखना है, मेटल, तो मेटल के आगे क्या लगाना है, ATE लगाना है, तो निकेलेट, निकेल 8। और निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 2, तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 लिखा, और इसके ऊपर चार्ज, इसलिए आगे क्या लिखा, ION, ION। ओके, I'll take the other example. 1 minute, I'll just take the other example. The example, CO C2O4 3 माइनस, करेक्ट। सी देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज मतलब कौन सा लिगैंड, कौन सा कॉम्प्लेक्स, एनोनिक कॉम्प्लेक्स। एनोनिक कॉम्प्लेक्स रहेगा तो पहले देखो, C2O4 2 माइनस इज ऑक्सलेट, ऑक्सलेट AT, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो। मतलब C2O4 2 माइनस है, ऑक्सलेट विल चेंज टू व्हाट, ऑक्सलेटो। बाद में यहाँ पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट, कोबाल्ट के लिए क्या लिखना पड़ेगा, कोबाल्ट, कोबाल्ट। और कोबाल्ट के लिए आगे क्या ऐड करोगे, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। कोबाल्ट के लिए लिखोगे कोबाल्टेट। तो यहाँ पे दिखा हुआ है कि अगर हमारा कोबाल्ट रहेगा तो कोबाल्ट के लिए क्या लिखोगे, कोबाल्ट ATE, मेट। ये कभी लिखना है अगर हमारा एनायोनिक कॉम्प्लेक्स रहेगा तो। अभी सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, COC2O4 3 इंटू ब्रैकेट 3 माइनस, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर X 3 इंटू C2O4, C2O4 का चार्ज कितना आ रहा है यहाँ पे, C2O4 का चार्ज कितना आ रहा है, -2, तो यहाँ पे -2, 3C +3 -2 इक्वल टू -3।
इक्वल टू -3, करेक्ट। x -6, 3 2 -6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 प्लस 6 राइट साइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू +3, मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखना है हमें, +3 लिखना है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 लिखना है। ओके, तो आगे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है हमें, लिगैंड। लिगैंड के बाद में क्या लिखना है, मेटल, और मेटल के बाद में उसका क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, करेक्ट। तो लिगैंड कौन सा है, देखो C2O4 ऑक्सलेट है, उसे क्या लिखना है, ऑक्सलेटो लिखना है, ऑक्सलेट को लिखना है ऑक्सलेटो। लेकिन हाउ मेनी लिगैंड्स आर देयर, 3, तो 3 के लिए क्या लिखोगे, ट्राई ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो। देखो लिगैंड है, 3 टाइम्स है इसलिए ट्राई ऑक्सलेट। ऑक्सलेट के लिए क्या लिखना है, ऑक्सलेटो लिखना है। मेटल कौन सा है, कोबाल्ट, कोबाल्ट। लेकिन कोबाल्ट के लिए क्या लिखना है, कोबाल्ट 80, कोबाल्ट 80, कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखा हुआ है, 3, तो ब्रैकेट में रोमन में 3, रोमन में 3, और यहाँ पे लास्ट में चार्ज है, इसलिए आगे क्या लिखना है, आयन। ये रहा हमारा नीम, तो ये रहा हमारा नीम, करेक्ट। दूसरा एग्जांपल देखो, सी Fe CN6 4-, ये भी हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स है, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, करेक्ट। Cn are called as cyanide, Cn- are called as a cyanide, करेक्ट। cyanide, cyanide के लिए क्या लिखोगे, साइनो, साइनाइड के लिखोगे साइनो, साइनाइड के लिखोगे साइनो, करेक्ट। और बाद में Fe मेटल है, Fe इज कॉल्ड एज आयन, आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिर FeRRAT, फेरेट, आयन इज कॉल्ड एज फेरस, iron is also called as the ferrous, so ferrous becomes what, ferrate। ओके, अभी सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे, Fe CN6 4-, FeX6, साइनाइड का चार्ज कितना आ रहा है, -1, 6 इंटू -1 इक्वल टू -4। Fe हमें फाइंड आउट करना है, तो इसीलिए X6, साइनाइड का चार्ज -1 इक्वल टू -4, ये ओवर द एरो, ओवर द हेड रहेगा, इक्वल टू -4, तो यहाँ पे X -6 इक्वल टू -4, X इज इक्वल टू -4, और 6 राइट साइड में आएंगे तो +6, X इज इक्वल टू +2, मतलब यहाँ पे हमारा जो आयन है, आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 आ रहा है। आयन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2। अभी सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, नेम ऑफ द लिगैंड, लिगैंड है, ये लिगैंड है, कितना लिगैंड है, 6, तो 6 मतलब क्या लिखोगे, हेक्सा, 6 मतलब क्या लिखोगे, हेक्सा। साइनाइड, साइनाइड के लिए क्या लिखो, साइनो, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। Fe के लिए आयन, आयन मतलब Fe, आयन के लिए क्या लिखना है, फेरेट, फेरेट, फेरेट। और Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2 इन द रोमन 2, करेक्ट, 2, एंड देन लास्ट में यहाँ पे 4 है, तो इसलिए क्या लिखोगे, आयन। ये हमारा आएगा IUPAC। देखो एक बार, 6 साइनाइड है, इसीलिए क्या लिखा है, हेक्सा। साइनाइड के लिए क्या लिखना है, साइनो, तो लिखा साइनो। आयन के लिए क्या लिखना है, फेरेट, FeRRAT, फेरेट। आयन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 इन द रोमन नंबर,
एंड लास्ट में यहाँ पे चार्ज है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा आयन। ये रहा हमारा IUPAC नेम, IUPAC नेम ऑफ एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। इसके लिए था ये IUPAC नेम फॉर कौन से कॉम्प्लेक्स के लिए, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, मतलब जिन कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज था, सेकेंड एग्जांपल में भी नेगेटिव चार्ज था, और थर्ड एग्जांपल में भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था। ये हमारे एनायोनिक लिगेंड्स हो गए। अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वन, एनायोनिक ही रहेंगे लेकिन थोड़ा अलग रहेंगे। सेकेंड टाइप, compounds containing complex anion and metal cations, compound containing complex anion and metal cation। तो अभी एग्जांपल देखो यहाँ पे, फर्स्ट Na3 ब्रैकेट CO NO2 6। तो यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, करेक्ट। अभी सबसे पहले क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा Na, यहाँ पे नंबर 1 है, नंबर 1 है तो 1 यहाँ पे चला जाएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे Na प्लस 3 यहाँ पे चला जाएगा तो क्या मिलेगा, CO NO2 6 3 माइनस, करेक्ट। तो ये हमारा बना एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, और ये हमारा बना मेटल cations। So see here, compound containing complex anion and metal cation तो अभी यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से लिगेंड्स है। NO2 है, NO2 क्या लिखेंगे हम लोग, NO2 माइनस, NO2 माइनस is nitrite, NO2 minus is nitrite but written as what, nitro। NO2 minus is nitrite, written as what, nitro। Cobalt is written as cobaltate, okay, cobaltate। अभी हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर इज राइट CO NO2 6 3 माइनस, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो X, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर X 6, NO2 के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, -1, तो 6 इंटू -1 इक्वल टू -3, X -6 इक्वल टू -3, प्लस इंटू माइनस माइनस, x इज इक्वल टू -3 प्लस 6, x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +3 आएगा। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +3 आएगा। अब यहाँ पे नाम कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले नाम किसका लिखना पड़ेगा, मेटल कैटायन का। ये मेटल, इसका नाम पहले लिखो, ये क्या है, सोडियम में। तो आई जस्ट राइट डाउन सोडियम। सो फर्स्ट आई विल राइट हियर एज सोडियम। सोडियम के बाद हाउ मेनी लिगैंड, 6 लिगैंड, तो हेक्सा, सोडियम हेक्सा, नाइट्रो के हेक्सा नाइट्रो, सोडियम हेक्सा नाइट्रो, हेक्सा नाइट्रो के बाद कोबाल्ट के लिए क्या लिखोगे, कोबाल्टेट। तो सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट
और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3। लेकिन अब यहाँ पे मेन इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, मेन इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए आयन नहीं आएगा। हाँ, अगर खाली इसका ही नाम लिखते हैं हम लोग तो इसका ही नाम क्या आता था, यहाँ से यहाँ तक हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट 3 आयन आता था। लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल मॉलिक्यूल में कुछ भी चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी चार्ज नहीं आएगा। तो नाम क्या आएगा, देखो आपको यहाँ पे सोडियम था, सोडियम, तो सबसे पहले क्या लिखा, सोडियम। 6 मतलब हेक्सा, हेक्सा। NO2 के लिए क्या लिखना है, नाइट्रो, हेक्सा नाइट्रो, हेक्सा नाइट्रो। और कोबाल्ट, कोबाल्ट के लिए क्या लिखना है, कोबाल्टेट, कोबाल्ट के लिए क्या लिखा, कोबाल्टेट। और ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, इसलिए यहाँ पे 3 लिखा। तो ये हमारा IUPAC नहीं। लिख ए, नाउ लिख बी एग्जांपल ऑफ इट। बी एग्जांपल K3AlC2O4 3, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, करेक्ट। पहले कौन सा आयन फॉर्म करेगा, ये आयन क्या फॉर्म करेगा, देखो यहाँ पे नंबर कुछ नहीं, मतलब 1 है, ये 1 नंबर यहाँ पे जाएगा तो क्या मिलेगा, K+। एंड 3 नंबर यहाँ पे जाएगा तो क्या मिलेगा, AlC2O4 3 ये हुआ हमारा एनोनिक कॉम्प्लेक्स, और ये हुआ हमारा मेटल कैटायन, करेक्ट। ये हमारा हुआ मेटल कैटायन। अभी पहले इसके बारे में स्टडी करते हैं, कौन सा है, C2। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम इसका अगर चार्ज निकलना है, एल्यूमिनियम का चार्ज निकलना है, तो एल्यूमिनियम कितना आएगा, X प्लस। बट उसके पहले एक मिनट, ये हमारा एनोनिक कॉम्प्लेक्स है, कौन सा लिगैंड्स है, C2O4 2-, C2O4 2- is called as a ऑक्सलेट। ऑक्सलेट को क्या लिखोगे, ऑक्सलेटो, ऑक्सलेट को लिखोगे ऑक्सलेटो। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए क्या लिखोगे, एल्यूमिनेट। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एल्यूमिनियम के लिए लिखोगे एल्यूमिनेट, कोबाल्ट के लिए लिखोगे कोबाल्टेट, गोल्ड के लिए लिखोगे ऑरेट, मैंगनीज के लिए लिखोगे मैंगनेट, प्लैटिनम के लिए लिखोगे प्लैटिनेट, ओके। क्रोमियम के लिए लिखोगे क्रोमेट, कॉपर के लिए लिखोगे क्यूपरेट, आयरन के लिए लिखोगे फेरेट, निकेल के लिए लिखोगे निकेलेट, और जिंक के लिए लिखोगे जिंकेट। यहाँ पे हमारा एल्यूमिनियम था तो इसलिए क्या लिखा, एल्यूमिनेट लिखा। अभी हम इसका फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम नहीं है, तो कितना लोगे, X, C2O4, C2O4 2- है और 3, तो 3 C2O4 -2 इक्वल टू -3, ओके। फिर यहाँ पे X -6 इक्वल टू -3, X इज इक्वल टू -3 + 6, X इज इक्वल टू +3, मतलब हमारे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +3। हमारे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +3। बट अगेन मैंने राइटिंग द नेम, राइट डाउन द नेम ऑफ दिस फर्स्ट कैटायन। कौन सा कैटायन है, पोटेशियम। So I will write here as a पोटेशियम, पोटेशियम बाद में पोटेशियम। अभी ये हमारा पोटेशियम खत्म हो गया, अभी ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में। एनायनिक कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम का नाम पहले लिख दिया, फिर उसके बाद एनायनिक कॉम्प्लेक्स में 3 मतलब ट्राई, C2O4 is what, oxalato, ट्राई ऑक्सलेटो। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए क्या लिखोगे, एल्यूमिनेट,
एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम के लिए क्या लिखोगे? एल्यूमिनेट। ऑक्सीडेशन नंबर 3 रोमन में 3। और यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं है, यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं है, करेक्ट। इसलिए यहाँ पे आगे आयन नहीं लिखना। हाँ, अगर इतना ही होता हमें तो यहाँ पे आयन लिखना पड़ता, लेकिन आयन नहीं। तो क्या नाम है आईयूपीएसी नेम? पोटेशियम, पोटेशियम ट्राई ऑक्सालेटो एल्यूमिनेट 3। इसके अंदर सी देखो अभी, सी Na3AlF6, Na3AlF6. Now in Na3AlF6, Na3AlF6 में सबसे क्या फॉर्म करेगा? Na। देखो यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे चला जाएगा तो क्या मिलेगा? Na+1 AlF6 माइनस। देखो 1 है, यहाँ पे 1 है, कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, तो 1 यहाँ पे चला जाएगा तो क्या बनेगा? Na+1। 3 यहाँ पे चला जाएगा तो क्या बनेगा? -3। ये हुआ हमारा मेटल आयन, और ये हुआ हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स, करेक्ट। अभी यहाँ पे हमारा लिगैंड कौन सा है? देखो लिगैंड F। F मतलब फ्लोराइड। फ्लोराइड के लिए IDE, तो IDE क्या लिखोगे? फ्लोरो। IDE will change to what? O, फ्लोरो। FLUORO, फ्लोरो। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए Al, उसके लिए क्या लिखोगे? एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। और AlF6-3, AlF6-3 का ऑक्सीडेशन नंबर निकलना है। तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर X, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर X +6 F। F क्या होता है? F is fluoride is F-, fluoride is F-, so here we'll have the -1 equal to -3. Okay, fluoride is F-, F- is called as a fluoride. Fluoride will become what? Fluoro. Aluminium it becomes what? Aluminate. अभी एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? तो X 6 × -1 इक्वल टू -3, X - 6 इक्वल टू -3, X is equal to -3 + 6, so X is equal to +3। द एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? प्लस। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3। अभी नाम लिख दो, ये पहला सोडियम है तो यहाँ पे आएगा सोडियम। क्या आएगा? पहले सोडियम, बाद में लिगैंड 6 फ्लोरीन है। 6 मतलब क्या लिखोगे? हेक्सा। फ्लोरीन के लिए क्या लिखोगे? फ्लोरो। देखो ये सोडियम लिखा पहले, सोडियम, बाद में ये हमारा कॉम्प्लेक्स एनायन में क्या है? 6 फ्लोराइड है तो हेक्सा फ्लोरो। एल्यूमिनियम के लिए क्या लिखना है? एल्यूमिनियम के लिए क्या लिखना है? एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। और ऑक्सीडेशन नंबर एल्यूमिनियम का 3 है तो रोमन में 3। और देखो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं, इसलिए बस ये हमारा रहा IUPAC। तो आज हम लोग ने क्या देखा? 2 टाइप के कंपाउंड देखे। 2 टाइप के कौन से कंपाउंड देखे? एक कंपाउंड देखा हम लोगों ने एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, और दूसरा कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स एनायन था एंड मेटल कैटायन। ये यहाँ पे खाली क्या था? एनायोनिक कॉम्प्लेक्स मतलब एनायंस थे, और यहाँ पे इसे डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? मेटल कैटायन एंड एनायन कॉम्प्लेक्स, मेटल कैटायन एंड एनायन कॉम्प्लेक्स, मेटल कैटायन एंड एनायन कॉम्प्लेक्स।
तो मेटल और एनायन कॉम्प्लेक्स रहेगा तो पहला किसका नाम लिखना है, मेटल का लिखना है, बाद में आयनाइन कॉम्प्लेक्स का लिखना है। तो यहाँ पे हमने वैसे ही किया, कैसे नाम लिखा है देखो, सबसे पहले किसका नाम लिखा है, मेटल का, और मेटल के बाद किसका नाम लिखा हुआ है, सबसे पहले किसका नाम लिखा है, मेटल का, और मेटल के बाद किसका नाम लिखा है, एनोनिक कॉम्प्लेक्स, और ये हमारा नाम है मेटल और एनोनिक कॉम्प्लेक्स। बाकी के नेम्स भी हमें करने हैं, बट दैट वी विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर।